Good morning, dear student. Today we will start the new topic, that is a voice. First of all, its definition. Voice ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Voice is a form of verb that is denote its relation with subject or object. Voice ਇੱਕ verb form ਆ ਰਾਜੇ verb ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ show ਕਰਦੀ ਇਸ ਦਾ relation subject ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ object ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ active voice and passive voice ਦੋ type ਦੀ voice ਹੁੰਦੀ ਆ। For example, Ram sings a song. एक example ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਪਹਿਲਾਂ subject ਆ, ਫਿਰ verb ਦੀ form ਆ, ਫਿਰ object ਆ। passive ਦੇ ਵਿੱਚ object ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ subject ਬਣ ਜਾਂਦਾ। A song is sung by Ram। ਤਾਂ first of all ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ active voice। In active voice, the verb is directly related to doer or subject। ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੂਅਰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਨ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਰਫਾਰਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅ ਵਰਬ ਔਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। Passive voice. In passive voice, the verb is directly related to the object or the agent। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ verb ਦੀ ਉਹ directly related ਹੁੰਦੀ ਆ object ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ agent ਦੇ ਨਾਲ। In passive voice, the subject is being acted upon। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ subject ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਰਬ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਅ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਬਾਈ ਮੀ। ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਮੇਨ ਵਰਬ ਫਿਰ ਬਾਈ ਫਿਰ ਮੀ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਪਰਸਨ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਆਈ ਦਾ ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਦਾ ਅਸ, she ਦਾ her, he ਦਾ him, they ਦਾ them, you ਦਾ you ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੌਇਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਈਂਡਸ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਂਸ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਸ ਜਾਂ ਈ ਐਸ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਮ ਪਲੇਸ ਹਾਕੀ। ਹੁਣ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਹਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਕੀ ਇਜ਼, ਹਾਕੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਪਲੇਡ ਬਾਏ ਰਾਮ, ਅਗਰ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਨਾਟ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਆਬਜੈਕਟ। ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਫਿਰ ਨਾਟ, ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਸਿੰਗ ਅ ਸੌਂਗ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅ ਸੌਂਗ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਆਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਬਾਈ ਮੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ, ਫਿਰ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਡਜ਼ ਸ਼ੀ ਟੇਕ ਟੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਪੈਸਿਵ ਇਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਟੀ
taken by her। कई बार WH वर्ड लगा हुंदा अगे, तो WH वर्ड का एक्टिव दे विच की हुंदा रूल, WH वर्ड पहला हुंदा, फिर हैल्पिंग वर्ब आ जांदा, डू जां डज, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जैक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव दे विच WH वर्ड रहेगा, फिर इज एम आर आएगा, हैल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जैक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, फिर सब्जैक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू वांट, व्हाट दा व्हाट रह जाएगा, इज वांटेड बाय यू। When the question start with who, जो क्वेश्चन अजे who तो स्टार्ट होंदा तो रूल थोड़ा डिफरेंट होंदा, जिमें एक्टिव दे विच होंदा who, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म, SJES, ऑब्जैक्ट, क्वेश्चन मार्क। तब पैसिव दे विच की होएगा, by whom, फर्स्ट सॉरी SJES लगा तो is MR आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जैक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। और एक होर तरह बन जाता है, बाय होम, इज एम आर, ऑब्जैक्ट, तो इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट भी होंदा इत्थे, कई बार वो आ जाता। एग्जाम्पल, हू टीचिस यू इंग्लिश, तो यदा की बन जाएगा, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। इसी तरह जिमें टेंस चेंजिस होणगे, उसी तरह इत्थे हैल्पिंग वर्ब आ जिहड़ा वो भी चेंज होंदा जाऊगा। नैक्सट आ गया राजे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव पहला एक्टिव दे विच की रूल हुंदा इहदा, सबजैक्ट आ जांदा, इज एम आर आ जांदा, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल ING, फिर ऑब्जैक्ट। पैसिव दे विच ऑब्जैक्ट, इज एम आर, इहदे नाल बीइंग लग जांदा। ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सबजैक्ट, फिर सॉरी बाय, फिर सबजैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, देखो अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय शी सीगा तो की बन गया हर। नैगेटिव दे विच राजे पहला एक्टिव दे विच सबजैक्ट इज एम आर दे नाल नॉट लगा हुंदा, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ ING हुंदा ते ऑब्जैक्ट। पैसिव दे विच ऑब्जैक्ट पहला आ जाएगा, इज एम आर दे नाल नॉट, फिर बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, फिर सबजैक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, द ट्रूथ इज नॉट बीइंग स्पोकन बाय, दे दा की बन गया राजे दैम। इंटैरोगेटिव दे विच एक्टिव दा रूल की हुंदा, जिमें WH वर्ड आ तो पहला WH वर्ड रहेगा, फिर हैल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सबजैक्ट, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म नाल ING, ऑब्जैक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव दे विच WH वर्ड उसी तरह रहेगा, इज एम आर आएगा, फिर ऑब्जैक्ट पहला आ जाएगा, फिर ऑब्जैक्ट तो बाद बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय, सबजैक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जिमें देखो, इज शी डूइंग हर वर्क, इज द उमें रह गया क्योंकि अगे भी सिंगुलर आ, इज हर वर्क बीइंग डन बाय हर, डू दी थर्ड फॉर्म डन। जिमें नैक्सट आ गया, वट आर यू डूइंग हेयर, तो वट दा वट उदा ही रह गया। ठीक है, is being done by you here, what is being done by you here। next आ गया राजे present perfect tense। affirmative दे विच एक्टिव दे विच की रूल हुंदा इहदा, सबजैक्ट पहला, फिर हैज़ हैव, जिथे हैज़ हैव लगा उतों आपां नूं की क्लीयर हुंदा भी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ, थर्ड फॉर्म लगी हुंदी इहदे विच एक, ते ऑब्जैक्ट। पैसिव दे विच ऑब्जैक्ट अगे आ जाएगा, हैज़ हैव दे नाल बीन लग जाता। जिहड़े भी परफेक्ट टेंस आउणगे उन्हां दे विच पैसिव दे विच बीन जरूर लगदा, नाल थर्ड फॉर्म, बाय, सबजैक्ट। द पियन हैज़ रंग द बैल, एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो पैसिव दे विच की बनेगा, द बैल हैज़ बीन रंग बाय द पियन। ठीक है, हैज़ बीन। नैगेटिव एक्टिव दे विच की रूल होएगा, द सबजैक्ट हैज़ हैव दे नाल नॉट लग जाता, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जैक्ट। पैसिव दे विच ऑब्जैक्ट, फिर हैज़ हैव दे नाल नॉट, फिर बीन, हैज़ हैव नॉट, फिर बीन आउंदा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सबजैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, दे हैव नॉट हैल्पड अस, हुण अस सारा जे तो अगे जाके यह की बन जाएगा, वी हैव नॉट बीन हैल्पड बाय, दे दा की बन गया दैम। इंटैरोगेटिव
एक्टिव दे विच अगर WH वर्ड आ तो WH वर्ड अगे होएगा। हैज़ हैव सबजैक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जैक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। पैसिव दे विच उसी तरह ही WH वर्ड हैज़ हैव फिर ऑब्जैक्ट फिर बीन, ठीक है। हैज़ हैव ऑब्जैक्ट फिर बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सबजैक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल हैव यू वॉन द मैच, ये होगा साडा एक्टिव। पैसिव दे विच हैज़, क्योंकि मैच सिंगुलर है रजे इस करके इत्थे हैज़ आ गया। हैज़ द मैच बीन वॉन बाय यू, ठीक है। द मैच फिर बीन, वॉन बाय यू फिर क्वेश्चन मार्क। अगर WH वर्ड आता वाई हैव यू टोल्ड अ लाई, वाई हैज़ अ लाई, ठीक है। अ लाई सिंगुलर है इस करके हैज़ आ गया। अ लाई बीन टोल्ड बाय यू फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। सो स्टूडेंट ये सीगा साडा प्रेजेंट टेंस। अगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूज आ जिहड़ा वो अपने आप दे विच ही पैसिव फॉर्म दे विच हुंदा हैगा, इस करके उहदा पैसिव जिहड़ा नहीं बनदा, ठीक है। अज लई असीं इन्ना करांगे। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि तुहानूं इत्थे तक बिल्कुल क्लीयर हो गया होवेगा। थैंक्स।